to you, bhai. Progress. Okay. So yes, write down in your book. The topic is replacing the source of supply by internal resistance, and internal resistance should be capital letters or bold or underline. Okay. We all know what do you mean by a source of supply. What is a source of supply? It can either be a voltage, it can either be a current. If it is a voltage source, it looks like this: positive terminal, a bada wala line, and a negative terminal, chotu wala line, or a combination of batteries, positive, negative, positive, negative. It can be represented in any ways. A circle with the polarity of plus and minus. All of these are representation of what? Voltage source. And if you can see, current source is represented by this, a circle with an arrow. Okay, arrow is going upward, the current is upward. Arrow is going downward, the current is going downward. In however case, this is called as a current source and this is called as a voltage source. And please identify, please observe that the notifications, यानी कि उनका जो symbolic representation is not same, it is different. Okay, so what are we going to do? We are going to replace the source of supply. Yani ki if it is a voltage source, we will replace it with a short circuit. A to B, whatever was there as a voltage, it will be replaced by a short. Okay, and when a current source is replaced, it will be replaced by an open circuit. A to B के बीच में क्या हो गया? Circuit is broken, it is open, it is not connected. A and B are not connected, they are open ended. Understood? Yes, sir. Okay, so write down, यहां पर लिखो वोल्टेज सोर्स, एरो बनाओ, शॉर्ट सर्किट लिखो, ये स्ट्रेट लाइन बनाओ, एंड यहाँ पे लिखो इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0. Write down over here, internal resistance is 0. Internal resistance is 0. तो यहाँ पर 0 इंटरनल रेजिस्टेंस था तो लाइन बन गई, यानी कि इट वाज अ शॉर्ट सर्किट. यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर? इंटरनल रेजिस्टेंस इज Not zero. नॉट 0. इनफाइनाइट. दिस इज द वाइवा क्वेश्चन. ठीक है, when a voltage source is replaced by an internal resistance, how is it looking like and what is the value of internal resistance? Okay, resistance जब 0 होता है तो फुल करंट, रेजिस्टेंस जब इनफाइनाइट होता है तो कितना करंट? समझ में आ रहा है क्या? It does a current flow through this A and B? Is the current flowing? No. 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 And is the Zero current current flowing रहेगा. from A and B here? Yes. Yes. तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0 एंड यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, मतलब इतना है कि वो करंट को फ्लो ही नहीं होने दे रहे. सो इसके लिए हमने इसको बोला ओपन सर्किट, इसको बोला शॉर्ट सर्किट. दिस इज ऑल थियोरेटिकल stuff. What I want you to focus is, when you see a voltage source and it is asked for you to replace the source of supply, you will directly draw a short circuit. And if there exists a current source and is asked to replace, you will draw an open circuit. Is that understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now copy this question. Copy this question. The question states, determine the current through 8 ohm resistance by superposition theorem. Let us not take 8 ohms. Let us change the question for making it simpler. Let us take
5 ohm. ठीक है, after you understand 5 ohm, you can move on to 8 ohm also. ठीक है, determine the current through 5 ohm resistor in the network by superposition theorem. क्वेश्चन कॉपी किया सब लोगों ने? नहीं सर। हाँ, कॉपी करो क्वेश्चन. Draw the diagram carefully and write the question also, and please underline this by superposition theorem. Position नहीं होना चाहिए, position होना चाहिए, position by superposition theorem. Done? Yes, sir. Done. Okay. अब ये जो क्वेश्चन लिखा है उसके ऊपर जो बॉर्डर है व्हाइट कलर का, जो ऊपर रहता है पेज के ऊपर टॉप एंड में, थोड़ी जगह खाली है क्या? Yes, sir. वो हाँ पेज सर, जहाँ पे खाली है। लिख रहे हो ना, हाँ, वो उसमें देखो ना, वो हाँ, टॉप खाली में है। जगह खाली रहती है व्हाइट में, तो वहां पे Right लिखो angle नोट, वहां पे लिखो नोट, नोट. Yes, sir. लिखा. When using superposition theorem, write down everyone. When using superposition theorem, only one source of supply is active. Only one source of supply is active. When using superposition theorem, only one source of supply is active at a time. Please write it. It is for your remembrance. When using superposition theorem, only one source of supply is active at a time. लिखे? Yes, sir. ओके, इसका मतलब क्या है गाइस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नोट? 2 वोल्टेज है ना सर, हाँ, तो उसमें से एक ही वोल्टेज चालू रहेगा. okay, so as Soha said rightly, there are, as you can identify in the circuit, there are two source of supply. Can you please see two source of supply? क्या तीन है या एक है? दो है. कौन से दो है दो है? सर। 2 है सर। 4 वोल्ट फाइव एक 4 वोल्ट है और एक 6 वोल्ट है, राइट? और सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोल रहा है? एट अ टाइम ओनली वन सोर्स ऑफ सप्लाई कैन बी एक्टिव. बात समझ में आई? मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक सप्लाई चलेगा, दूसरा वाला सप्लाई नहीं चलेगा. सो नाउ आई आस्क यू द क्वेश्चन, अगर एक सोर्स ऑफ सप्लाई इज एक्टिव, व्हाट हैपेंस टू द अदर सोर्स ऑफ सप्लाई? शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट होगा. रिप्लेस हो जाएगा ना सर. रिप्लेस हो Replace हो जाएगा. इतनी देर से जो मैं पका रहा था ना तुम लोग को रिप्लेस होने का बात, यहाँ पे मैं तुम लोग को बोल रहा था ना रिप्लेस हो जाएगा. कहाँ गया बे? रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा. कहाँ रिप्लेस होगा? इसमें रिप्लेस होगा, इस नोट में जो मैंने नहीं लिखाया है. ठीक है, ओनली वन सोर्स ऑफ सप्लाई इज एक्टिव एट अ टाइम. उसके आगे का मैं बोल रहा हूँ, लिखेंगे नहीं कोई भी. ठीक है, ओनली वन सोर्स ऑफ सप्लाई इज एक्टिव एट अ टाइम, वेयर एज all the other sources are replaced by internal resistance. Okay, don't write it, understand it and remember it. जो लिखने की बात थी वो मैंने लिखवा दिया. Okay, all other sources will be replaced. ओपन करके. Now इस क्वेश्चन में कितने सोर्स ऑफ सप्लाई है? 2 2 है. 36 वोल्ट एंड 12 वोल्ट. कितना वोल्ट? 6 वोल्ट भी है, 36 वोल्ट वोल्ट, 6 बोला. एम्पियर भी, 6 एम्पियर का 6 करंट भी तो है एम्पियर. सर. हाँ, वो तो भी how तो many replace sources होगा. are there in this circuit? 3 सोर्सेस. There are three Three. sources.
Okay, there is a 36 volt, there is a 12 volt and there is a 6 amperes. And मेरा जो नोट लिखा है उसका मतलब क्या है? Only one source of supply is active at a time. और जब वो एक्टिव है तो बाकी लोग क्या है? Replaced है. रिप्लेस हो जाएगा। Replace हो जाएंगे। ठीक है, we will see how the solution works, but please understand what the note is saying. And now we are starting with superposition theorem. Okay, if you help me rightly, तो रिप्लेस कैसे होएगा? वो बताते ना भाई, बताता हूँ। ठीक है, बस उतना समझ में आया ना तेरे को, वो जरूरी है। ओके, नाउ इन दिस सर्किट व्हेन आई से वन सोर्स ऑफ सप्लाई इज एक्टिव एट अ टाइम, व्हाट विल आई डू? एक मिनट रुको, पहली चीज क्या करेंगे? तुम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है क्या केसीएल या केवीएल? नहीं दिया। नहीं दिया। नो सर। ठीक है, एंड मैं अपने ईज के लिए, क्योंकि क्या पूछा जा रहा है? करंट पूछा जा रहा है। जब करंट पूछा जा रहा है तो मैं क्या लिखूंगा? मैं क्या लूंगा? KVL केवीएल लूंगा या केसीएल लूंगा? KVL केवीएल KVL लूंगा। ठीक है, सो मैं वो भी समझ गया, करंट पूछा तो मैं केवीएल लूंगा। सो केवीएल का फर्स्ट पार्ट क्या है? आइडेंटिफाइंग द सर्किट्स एंड मार्किंग द करंट इन द लूप, current. है ना? ये कर लो अपने डायग्राम के अंदर पहले ही 1 2 and 3 so that it remains uniform no matter what changes in the circuit come afterwards. I1 I2 and I3 मार्क कर लो। Yes, sir. ठीक है, इजी पीजी। ये क्वेश्चन के जो पहला ये है स्टार्ट हमारा रीड्राइंग द सर्किट डायग्राम, उसमें ही आ गया। ओके, नाउ फर्स्ट इज आई विल नेम V1 as 4 volts, V2 as 6 volts. The first line that I write while I'm making the solution is V1 is equal to is 4 volts and V2 is 6 volts. नाम दे दिया मैंने किसको? मेरे सोर्स ऑफ सप्लाई को। Okay, V1 is 4 volts and V2 is 6 volts. Any difficulties यहाँ तक? The first line that I do is I will assign a name. सब लोग लिखो ये चीज को, ठीक है? Now solve this question simultaneously with your professor. When you solve it now, it will be much more easier for the next problem because it is going to get complicated. So the first step that I do is source of supply V1 is acting alone. या तो पूरा लिखो या तो सिर्फ इतना लिखो 4 volt acting alone. Write down 4 volt acting alone and now redraw the circuit जिसमें सिर्फ 4 volt रहेगा, 6 volt नहीं रहेगा। 6 volt की जगह पे हम क्या ड्रॉ करेंगे? रिप्लेस करने के बाद में a straight line, ऊपर से नीचे के बीच में 6 volt है ये ब्रांच में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? It will be a straight line as stated in the formulation. When we replace a voltage source, it is replaced by a short circuit. And now the diagram will look something like this. Hello? yes sir. Yes, sir. Yes. Any difficulties ये step तक? No, sir. No, sir. No sir ना? Okay. रुक जाओ, केवीएल लगाओ मत थोड़ी देर के लिए, रुक जाओ, बस जस्ट ऑब्जर्व। सर, हाँ बोलो। आप एक बार फिर से बता सकते हो? ओके, तुम लोग को मैंने Thank बता, how many supply sources of supply are there in the circuit? We have identified there are two sources of supply. One is 4 volts and one is 6 volts. Okay, now as the solution begins, superposition के लिए हम लोगों ने एक नोट लिखा है ऊपर। It says only one source of supply is active at a time. So दोनों में से एक सोर्स एक्टिव रहेगा। मैंने ले लिया 4 volt acting alone. So I draw the circuit by keeping only one source of supply in the circuit. और कुछ दिख रहा है क्या तुमको यहाँ पे? सोर्स ऑफ सप्लाई नहीं, नहीं ये सर। जो 6 वोल्ट था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया बाय अ शॉर्ट सर्किट। अगर यहाँ पे करंट सोर्स होता 6 एम्पियर्स का तो मैं क्या कर देता?
ओपन सर्किट सर उसको ओपन सर्किट कर देता है, राइट? यस, बट यहाँ पे फाइन फाइन, नाउ दैट यू अंडरस्टूड, हम लोगों ने अभी क्या किया है, शॉर्ट किया है। अब ये डाउट किसने पूछा था? ईमान ने पूछा था ना कि मानसी ने? यस सर। ओके ईमान, नाउ टेल मी, इफ देयर इज ओनली 6 वोल्ट एक्टिंग अलोन, तो क्या होगा डायग्राम? तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो क्लोज हो जाएगा। लाइक दिस? हाँ। ओके नाउ गाइस, देखो दो डायग्राम मैंने ड्रॉ किए हैं पैरेलली, बट एक पहले इसका सॉल्यूशन निकालूंगा फिर यहाँ पे जाऊंगा। हाँ, नेवर इन द केस कि मैं इस दोनों डायग्राम साथ में बनाऊंगा, सो डोंट टेक इट दैट वे। व्हाट आई वांटेड टू शो बाय गिविंग यू दीज टू डायग्राम्स इज, मैंने यहाँ पर डायग्राम में करंट का डायरेक्शन मैच किया था, करंट का डायरेक्शन, रिमेंबर? यस So सर। first step, in please observe in both the cases of superposition, is the current direction changing? No, sir. नो सर। नो सर। Is the number of current assigned, yani ki 1, 2 and 3, is it changing? No. सर। No. So this has to be there. No matter how many solutions go on continuing, तुम लोग का 1, 2, 3, 1, 2, 3 same रहेगा, and also clockwise direction of current will be there, no matter where your source of supply is situated. Understood? यस सर। Now solve this part and get the currents. Solve this part in your book. Jaldi, jaldi, jaldi fire. It is 10:40. I expect the answer by 10:43, maybe 10:45, but not more than that. सबके आंसर आ जाने चाहिए. The answers are written over here, but don't see. पहले solve करो. KVL, your thing, which is easy according to you. सर 0.32 I1 है, बराबर. Next. I2 0.16 Okay. और I3 0.06। ये बाप रे, ये बच्चे ने दिया है आंसर 10:40 में ही दिया है. डूड तूने पेपर पे सॉल्व किया तो? हाँ, कौन सा वाला? ये पेपर पे सॉल्व किया ना? नहीं मतलब पूरा नहीं, ये मतलब हाँ अभी हाँ, सॉल्व किया। बुक में लिख ले बेटा, नहीं तो फिर हाँ असाइनमेंट लिखा सबमिट करने सकती के टाइम पे इक्वेशन है। परेशानी हो जाएगी. हाँ, तो 6 वोल्ट पे जाते हैं जल्दी. 6 वोल्ट एक्टिंग अलोन. So Toha has managed in 1 minute. I expect you guys to follow the same suit, because उसको पैकेज ज्यादा मिलेगा और तुमको कम. मुझे अच्छा नहीं लगेगा. पैकेज मतलब सैलरी पैकेज. Buckle up. फास्ट करो, कभी कभी गलत आ जाएगा तो एडजस्ट कर लेंगे, बट देन फास्ट करो. Let it be fast, faster and fastest. सर I1 0.32, Hmm. I2 equals to 0.16 and I3 equals to 0.06. Good. 6 volts. 6 volt acting alone. जल्दी जल्दी जल्दी. I2 एंड I3 थोड़ा राइट है। I1 सर 0.31 है, 2 नहीं। चलेगा चलेगा. आगे आगे. आया सर. 3-1 is acceptable. 6 volt acting alone. उधर भी मुझे करंट चाहिए. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. सर I1 माइनस 0.51, नहीं रे, गलत है. किसका? अच्छा तोहा सेकंड वाला बोल रहा है तू. सेकेंड वाला हाँ, तू ही तो है. 0 point I1 नहीं रे, माइनस मतलब माइनस में आ रहा है। नहीं रे.
खुदा मेरे कुछ गलती की है। हाँ जा पीछे. There is 5 ohms, there is 15 ohms, there is 10 ohms, there is 8 ohms, there is 12 ohms, and there is 6 volt. 6 volt का डायरेक्शन देख लो, अच्छे से सॉल्व करो. इक्वेशंस चाहिए. सर पहली इक्वेशन 15i2 मतलब थर्ड लूप वाली 15i2 minus 20i3 is equal to 6. रुक जा. पहली इक्वेशन ये वाली बोल रहा है ना, इक्वेशन फॉर लूप 3. 12 है उधर। मैं वही बोला, देख ये तू चेंज नहीं कर सकता तेरे सप्लाई के हिसाब से. जब क्वेश्चन में तूने 1 2 3 किया ना, तो इधर भी 1 2 3 ऐसे ही करेगा. वो चेंज मत कर, ठीक है. -30i1 plus 15i2 plus 0i3. वापस बोलो बच्चा. -20i1 plus 15i2 plus 0i3. नहीं. राइट है ना? ये इक्वेशन आया, इक्वेशन नंबर 1. सर Yes, sir. बराबर है, मेरे इक्वेशन करेक्ट है। -20i1 plus 15i2 minus 0i3 is equal to 0. ये इक्वेशन नंबर 1 है मेरा फॉर KVL in loop 1. बराबर है. हाँ सर हाँ बराबर। sir. Okay, let us see equation number 2. 15i1 minus Minus 33i2 plus 8i3 equals to 0. प्लस 8 है। हाँ Okay, and what is the third equation now? -20i1 नहीं मतलब माइनस क्या है 15i2 सर minus 0 20i3 i1 भाई जरा 0 देख. i1 plus 8 i2 हाँ, minus 0 20 i1 i3 equals to 6. मतलब वही 0। ट्वेल्व एंड 8 है. हाँ तो सर minus 20 i3 बराबर है वो 8i2 है. 6i2 कौन बोल रहा है भाई? There is 8i2 and it is plus. Why was someone saying 6i2? Please check the equation number 3. There is 8 ohm and there is 12 ohm. 12 plus 8 is 20 minus 20 i3, and 8 ohm has current i2, so plus i2. The voltage is opposing, so it was plus 6 when it was on the left hand side. When it is, oh sorry, minus 6 था, जब आ जाएगा तो plus 6 हो जाएगा. X is सर i1 की वैल्यू -0.09 हाँ, minus minus 0 और Y is -0.129 Okay. and Z is -0.351. तो अब XYZ को है ना I1 I2 I3 बोलो जल्दी जल्दी. Write it down. लिखे सब लोगों ने? हाँ सर. Everyone हाँ please सर have इस सबके आंसर सेम आने चाहिए. रुको अभी तक। हाँ रुका हूँ, मैं तो बात कर रहा था. गाइस सबके आंसर सेम आने चाहिए बिकॉज इक्वेशन में जो वैल्यूज है आर सेम. ओके, एंड प्लीज नोट 1 2 3 अगर यहाँ था तो यहाँ पर भी 1 2 3 ही रहेगा. यू कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ लूप. असाइंड नंबर ऑफ लूप को चेंज नहीं करो, ठीक है. इट विल बी फॉलोड इन द थ्रू आउट द सर्किट. डायरेक्शन भी वैसी रहेगी क्लॉकवाइज, वो तो बोलने की जरूरत नहीं है. क्या करूँ? ओके, चल रहा है। नाउ व्हाट आई वांट यू टू ऑब्जर्व कि तुम लोगों रुको के ना। अच्छा, रुका. सर हाँ बोलो. सर लेकिन आपके साथ मतलब सॉल्व सर, करते ना doubt तो है। बहुत अच्छे से जल्दी से हो जाता है और पेपर में हो रहा ही नहीं था और ऊपर से गलत भी हो रहा था. हाँ तो बच्चा प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही चाहिए यहाँ पे. यू सर, प्रैक्टिस एंड यू गेट बेटर. सर नेक्स्ट अभी क्या और कितने लोग एक साथ बोल रहे हैं? वापस बोल, कौन सर क्या बोल रहा था? सर नेक्स्ट क्या करना है, हो गया कंप्लीट। हाँ रुक जा रहे हैं, क्या है ना कि तेरा पैकेज बढ़ गया, लोगों का भी बढ़ाना है मेरे को. टेंशन मत ले, रुक. ये सर
अरे क्या करें यार, अभी उनका भी देखना पड़ता है, उन लोगों ने भी फीस दी है, ऐसा थोड़ी ना है कि उन लोग तूने अकेले दिए। kidding man, I'm kidding, take it as a humor. Okay, moving forward. नाउ तुम लोग के पास दो सर्किट है सॉल्व किए जो तुम लोगों ने सॉल्यूशन वाइज, एंड दोनों में क्या निकला, I1 I2 I3, I1 I2 I3 बराबर है क्या? Am I हाँ correct? सर। Yes, sir. Yes, but Yes, sir. तुम लोगों ने ये जब निकाला था सॉल्यूशन, इट वाज हैविंग द फर्स्ट सोर्स यानी कि V1 एक्टिंग अलोन एंड दिस वन वाज V2 एक्टिंग अलोन, राइट? Yes, हाँ sir. सर। Yes. So now I want you to rename your answers. Okay. For these solutions, you find I1, I2, and I3. I want you to put a dash. I1 dash, I2 dash, and I3 dash. Now, if this was named as dash, ये क्या होगा? I1 double dash, I2, I2 double dash, and I3 double dash. Please rename it carefully and slowly. जो फर्स्ट फेज का आया स्टेप नंबर 1 के आंसर्स, इट वेर कॉल्ड एज I1 डैश, I2 डैश एंड I3 डैश. द सेकेंड फेज का जो सेकेंड स्टेप का हमारा वोल्ट करंट्स आए हैं, दे आर कॉल्ड एज I1 डबल डैश, I2 डबल डैश एंड I3 ट्रिपल डैश. यहां तक हुआ सबका? सर फिर से बोलो। बच्चा हाँ सर। तुम्हारे पास सोर्स ऑफ सप्लाई दो है, ठीक है? पहले सोर्स से सॉल्यूशन किया, जो आंसर्स आए तुम लोग के केवीएल करने के बाद, उसमें रीनेम करना है. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड रीनेमिंग करना है. तुमने I1 I2 I3 लिखा, मैं उसमें बस चेंजेस क्या बोल रहा हूँ, राइट डाउन अ डैश. डैश मतलब ऊपर में जहाँ पे रेस टू वाला पार्ट होता है ना, वहां पे लिखेंगे I1 डैश, I2 डैश एंड I3 डैश, जैसा मैंने लिखा है. और सिंस ये फर्स्ट था तो ये सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, रीनेमिंग. इट विल बी I1 डबल डैश, I2 डबल डैश एंड I3 ट्रिपल डैश. लिखो लिखो, इट विल सर्व यू इन बेटर वे टू आंसर. लिखो. यस सर। लिखे. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? करंट 5 Going to resistor. 5 in 5 ohms is equal to, बताओ मुझे करंट इन 5 ohms कौन सा वाला करंट है इन दिस सॉल्यूशन? 4 वोल्ट I1. एक्टिंग अलोन. V1 है कि I1. I1 है? I1 है. I1 है, I1 राइट? और दूसरे I1 वाले में dash. क्या है? I1 डबल डैश वाला. इसके लिए नेमिंग किया हाँ. है. सो आइडेंटिफाइंग कि क्या दिया है, यहां पर आएगा डैश. डैश सही जगह पे जा. I1 डैश, और यहां पर क्या आ जाएगा, I1 डबल डैश. Now do you get it? Why I Yes, sir. made it Yes, I1 sir. dash Sir, and फिर से I2 बोलो double सर। dash? सर, There फिर was से a बोलो। Yes, reason. sir. Okay, now what is the value of I1 and I2? 0.32 0.23 और minus 0.09. minus 0.23 आंसर है सर, आंसर। 0.32 है। 32 minus 0.09. 0.09, which is equal to what? 0.23. 0.23 amperes. Now this is the current through 5 ohms. I1 dash plus I1 double dash, which is equivalent to 0.23 amperes. Now do you understand how the superposition theorem का solution works? You have to Yes, start sir. by step 1, यानी कि V1 acting alone, and you solve and you get the answers. रुक जा. Then you go to the step number 2. You take the second source acting alone, you solve and you get the answers, and then you go to the question and write the equation and then find the answers. बोल अभी. सर अभी ये क्वेश्चन में अपने को 3 सर्किट डायग्राम बनाने पड़ेंगे ना, क्योंकि पहले इसमें ये अपने को केवीएल से पहले वो बताना पड़ेगा ना कौन से सोर्स है अपने पास I1 I2 I3, तो 3 डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे. 3 डायग्राम क्यों भाई? तूने क्वेश्चन किया ना अभी, देखना यहाँ पे 2 हाँ थे ना. सर.
दो ही थे ना, ये देख, हाउ मेनी सोर्स ऑफ वोल्टेज, ओनली टू, तो 2 टाइम्स बनाएगा ना तू। हाँ ओके ओके सर हाँ बोलो। हम 5 ओम के लिए I1, फिर 10 के लिए I2 और 12 के लिए I3 निकाल लेंगे, फिर 15 ओम और 8 ओम पे नहीं क्वेश्चन आया तो वैसा नहीं, वैसा नहीं। फिलहाल क्वेश्चन जो दिया है उतना आंसर समझा तुमको? करंट इन हाँ। 5 यस सर। यस तुमको क्या सर। लगता है कि यूनिवर्सिटी में आसानी चीजें नहीं दी होती हैं? यूनिवर्सिटी पेपर्स आर ऑलवेज गोइंग टू स्क्रू विथ यू। दिस इज द क्वेश्चन। कौन सा रजिस्टर पूछा उन लोगों ने, देख रहे हो क्या? यस 8 सर। ओम। Yes, 8 sir. ohms. Now what is the current in 8 ohm resistance, बताओ? I2 minus I3. Yes, I2 minus I3 किसी ने तो I2 minus I3 लिया है। ठीक है, तो तुमको है ना फेज स्टेप 1 का I2 minus I3 निकालना है, स्टेप 2 का I2 minus I3 निकालना है और उसका आंसर निकालना है। गेट दैट स्ट्रेट। मैंने I3 Sir. minus I2 निकाला है, रुक जाओ। ठीक है, इट डजेंट मैटर, तुम लोग ने I2 minus I3 लिया तो भी 0.22 ही आने वाला है, I3 minus I2 लिया तो भी 0.22 ही आने वाला है। व्हाट विल मैटर, चेंज विल बी द डायरेक्शन। मेरा ये डायरेक्शन, डायरेक्शन। तुम्हारा दूसरा डायरेक्शन। कमिंग बैक टू द सर वाला पार्ट। हाँ पूछो बच्चा, कौन पूछ रहा था? कुछ नहीं सर। हैं? क्या हुआ? सर एक डाउट है सर अटेंडेंस। हाँ रंजन, हाँ बोल। सर। हाँ बोल। यस। सर वो मतलब एक बैटरी कंसीडर करते हैं ना एक टाइम पे, हाँ तो सर मतलब जब दूसरा सोर्स लेंगे तब जो साइन होती है ना सर रजिस्टर की हम लेते हैं, वो सर चेंज होती है कि सेम ही होती है? ये देख, तीनों साइन मैंने क्वेश्चन में ही डिफाइन कर दिया, सॉल्यूशन तो लिखा भी नहीं मैंने, तो ऐसा ही ये चलेगा डायरेक्शन ऑलवेज इन एनी नंबर ऑफ लूप्स इन एनी। जो भी तू करेगा ना आगे, केवीएल लगा ले या केसीएल लगा ले, जो भी कर, तेरे डायरेक्शन तू क्वेश्चन में ही डिफाइन करेगा। ओके, और उसके अकॉर्डिंगली तू सॉल्व करेगा, बिकॉज मैं एज ए पेपर चेकर तेरे डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली करूंगा। अगर तू चेंज करेगा ना डायरेक्शन, अगर दूसरे इसमें लिया तूने डायरेक्शन चेंज किया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। अगर तूने ये नंबरिंग चेंज किया, I1 I2 I3 यहाँ था और तुहा ने अभी किया था इसको I1 इसको I2 और इसको I3 ले लिया था, तो पक्का एरर, द आंसर विल बी रॉन्ग। सो पहले ही हम क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर लेते हैं, दिस इज लूप 1 लूप 2 लूप 3, नो मैटर हाउ द सोल्यूशन गोज। ओके, ओके टू सर। मार्क्स के लिए Sir, आएगा। एक बार current in इसका 8 ohm minus 8 ओम के लिए हमने I2 minus I3 क्यों लिया, I3 minus I2 क्यों नहीं? क्यों ले सकते हो, देखो ना मैंने I3 minus I2 लिया है, आंसर सेम होगा। एब्सोल्युटली सेम होगा। if you do the addition rightly, यहाँ पे देखो ना 0.35 माइनस ऑफ माइनस 0.29, तो ऐसा करके जब करोगे ना तुम्हारा आंसर परफेक्ट ही आने वाला है। ओके सर। एडिशन राइटली आंसर सही आएगा। और यहाँ देखो, पहले मैंने आई करंट इन 8 ohm डैश फाइंड किया by using these two currents as dash and dash, फिर करंट इन 8 ohm डबल डैश फाइंड किया, I3 डबल डैश एंड I2 डबल डैश, एंड फिर मैंने लास्टली 8 ohm डैश प्लस 8 ohm डबल डैश किया, एंड I found the answer. This is Okay, what sir. your university Yeah, decides sir. for you, a complexity. But the good thing is ना, ये complexity का 2 मार्क होता है, question is of 8 marks, so 6 marks is for finding the right currents in both the situation, यानी कि V1 acting alone, V2 acting alone, और इस चीज का सिर्फ 2 मार्क होता है, कभी कभी 1 मार्क सर होता तो है, फिर डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्टेंट तो जेनरोसिटी यही ऑफ द हुआ ना, प्रोफेसर। हाँ बोलना। रिजल्टेंट तो यही हुआ ना, यूनिवर्सिटी का भी बच्चों को कुछ देखना ही। अबे तेरे को आसानी से पास करना होता तो एडमिशन के टाइम पे सर्टिफिकेट नहीं दे देते, तेरे को बोलते 4 साल की फीस भर, ले सर्टिफिकेट इंजीनियर जा। वही तो सर। नहीं देंगे ना तेरे को हम रगड़ेंगे, तेरे को हम एक्सपीरियंस देंगे, तेरे को हम ग्रिल करेंगे कि भाई दिमाग का पोटेंशियल ना हाई करो यूज करने के टाइम पे। ओके, इसके लिए इंजीनियर्स
from Mumbai University are very, very credible as compared to other universities. Yes, Feel sir. proud of it. Okay, you will not understand this part as long as you are giving interviews in Mumbai. When you go to a different country to give an interview, online ही सही, then you understand the caliber of Mumbai University that you carry. नाम से ही पहचान में था, oh Mumbai, India. ला yes, Mumbai is in India. अगर तू वही बोलेगा ना पुणे यूनिवर्सिटी तो बोले पुणे, where is this Pune? In India. पुणे in India, where? सर मुंबई के पास में ही यहाँ पे. बोला oh okay okay. गरीब आदमी. So this happens. Okay, I have faced these kind of interviews, so I know. Coming back to the question in hand. Now this question will be taken as a question before we conclude the lecture. That is 10:59. Do you want me to sir. post an attendance link? Yes. हमेशा पोस्ट करवाते हो बे, हमेशा काम करवाते हो. मैं 2 मार्क तो तुम्हारे इधर से ही खा जाना चाहिए. कभी तो बोलो कि सर नहीं है हमारे पास में, आपकी सर कोई जरूरत नहीं है. और बोलना. ये अपना अगर आंसर रॉन्ग रहेगा तो स्टेप्स पे मार्क्स मिलेंगे ना? ऑफ कोर्स स्टेप्स पे मार्क्स मिलेंगे, बट आंसर रॉन्ग अगर पे क्यों छोड़ रहा है तू? करना राइट. अरे सर ये मैं तो बोला. क्वेश्चन पेपर हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. एग्जाम स्टेप के मार्क्स होते हैं. सुपरपोजिशन, नॉर्टन्स एंड थेवेनिन्स में स्टेप के मार्क्स होते हैं. ओके, बट व्हाट नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड इज व्हाट आर द स्टेप्स. देखो मैंने चैट विंडो में डाली है, उस पे जाने की बजाय पहले यहाँ पे ध्यान दो. हाउ मेनी सोर्सेस आर देयर? 2 sir. देख फिर 2 बोला, पहले 3 है देख सर. पहले. 3 है सर. 3 है. ठीक है. नाउ आई वांट यू गाइस कि जो हमारे पास 1 मिनट नहीं है, जाने दो, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बात. ठीक. सर आज है ना दूसरा लेक्चर? हाँ दूसरा दूसरा लेक्चर है ना, इसलिए मैं मर नहीं रहा हूँ. जान दे, इतना डेस्परेट क्यों होने का. वी विल सी यू इन द सर नेक्स्ट एक क्लास. डाउट है बोलना भाई. सर, वो लास्ट क्वेश्चन दिखाऊं? सर सर ये लास्ट में जो I1 8 डैश प्लस I2 8 डैश क्यों कह रहे हैं सर? I डैश 8 ओम से I डबल डैश वहाँ सर नहीं, फाइनल आंसर जो ये ना? माइनस 0.32 आया ना, वहाँ प्लस क्यों किए सर दोनों डैश को? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इधर थोड़ी ना कुछ प्लस माइनस है. ओके सर. यहाँ पे देख माइनस 0.1 एम्पियर है. देख मैंने माइनस 0.1 एम्पियर लिया, और ये कितना है? Yes, sir. माइनस 0.221 है, तो मैंने यहाँ पे उसको माइनस 0.221 लिया, एंड Yes, देन sir. आई गॉट द फाइनल वैल्यू. समझा सर, थैंक यू. Okay, I'll see you in the next class. I'll conclude the Sir. lecture for today. Okay, सर बोलो. सर वो अभी जी क्वेश्चन दिया ना, उसमें 3 बार बनेगा क्या फिगर? 3 अलग अलग बनेगा. It will be V1 as 36 volts, it will be V2 as 12 volts and V3 as 6 amperes. तो V3 की जगह I3 बोलेंगे हम लोग. अभी देखो सर आई के लिए बनाएंगे ना, तब सर्किट ओपन हो जाएगा ना. Absolute. सॉरी बराबर नहीं बराबर. नहीं नहीं नहीं, गलत. बराबर. अपन बाद में करेंगे इसको, गलत चल जान दे. ठीक है, चलो. थैंक यू सर. Yes guys, thank you. Welcome. Take care. Bye bye. Next class. Go जल्दी जाओ. Attendance mark करो. I'm concluding the lecture. Okay.